নমস্কার দর্শকগণ, আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমাদের নির্বাচনী তরজা বা নির্বাচনী তর্ক বা প্রার্থীর ভাষা আপনাদের সমক্ষে বা আপনাদের সামনে। কেননা ডিএসটিভি দার্জিলিং কিছুদিন আগেই ডিএসটিভি ইন্ডিয়াতে কনভার্ট হয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে বিভিন্ন রাজ্যে, বাংলাভাষী রাজ্যে, আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলা, সাথে হিন্দি বলয় রাজ্যতেও আমাদের পরিধির বিস্তার রয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা শিলিগুড়ির নগর নিগম বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 18 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঞ্জয় শর্মা বাবুর সঙ্গে রয়েছে। সঞ্জয় শর্মা বাবুর কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করব এবং আমাদের চ্যানেলে জিজ্ঞাসা রয়েছে উনি ওয়ার্ডের জন্য কি ভাবনা রাখতেন। সঞ্জয় বাবু, আপনাকে নমস্কার আমাদের চ্যানেলে। নমস্কার। আপনি কেমন আছেন? খুব ভালো। আপনি দেখুন, আপনার পরিচিত মুখ, যদিও শিলিগুড়ির মুখে পরিচিত মুখ, কিন্তু নির্বাচনের সময় আপনার মুখটা দেখার জন্য আপনার ভোটাররা হয়তো বা তাকিয়ে রয়েছে, এটা কোন সঞ্জয় শর্মা, সেই আমাদের কোনো সঞ্জয় শর্মা কি বর্তমান অন্য কোনো সঞ্জয় শর্মা? কেননা আপনাদের এই ওয়ার্ডে এমনি একটা বিতর্ক তৈরি হয়ে আছে। আপনার মাঝে যদি আপনার ভোটারদের জন্য আপনার মুখটা দেখে দিতেন তাহলে সুবিধা হতো। নমস্কার সবাইকে। সঞ্জয় বাবু, আপনার প্রথম লক্ষ্য রয়েছে আপনার ওয়ার্ডটাকে, ওয়ার্ডের বিকাশ বা ডেভেলপমেন্টের জন্য কি কি লক্ষ্য রেখেছেন? দেখেন, লক্ষ্যের ব্যাপার হচ্ছে 18 নম্বর ওয়ার্ড সমস্ত ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে। বাংলাভাষী, হিন্দিভাষী, কিছু নেপালি ভাষী আছে, অন্যান্য জাতি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো এখানে আছে। সবাইকে সাথে নিয়ে চলতে হবে, সবার জন্য কাজ করতে হবে। দিদি এবার শিলিগুড়ি শহরে দিদির বোর্ড, টিএমসির বোর্ড হতে চলছে শিলিগুড়ি শহরে। শিলিগুড়ির মানুষ এটা প্রায় ঠিক করে ফেলছেন অলরেডি। আর 18 নম্বর ওয়ার্ডে আমরাই আছি, আমরাই থাকবো। এতদিন যা কাজ হয়েছে ওকে ধরে নিয়ে, ওই কাজগুলোকে নিজের পাশে ধরে নিয়ে, ওই কাজগুলোকে এসেট হিসেবে ধরে নিয়ে আর কি কি করা যেতে পারে তার জন্য আমাদের সমস্যা চলছে। জনগণের দ্বারে দ্বারে আমরা যাচ্ছি, জনগণকে জিজ্ঞাসা করছি। কিছু প্রাইমারি কাজ যেটা আমার মনে হয়েছে এটা করা খুবই জরুরি। এখানে একটা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে, বহু বছর ধরে প্রাইমারি রয়ে গেছে। ক্লাস 6-এ যখন অ্যাডমিশন নিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য স্কুলে যেতে হয়। ওই স্কুলটা আমরা চিহ্নিত করেছি, দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। ওই স্কুলটাকে আমরা বিভিন্ন ইয়ার আপগ্রেড করবো, ওকে ক্লাস 10 অবধি করবো, যাতে মাধ্যমিক স্কুল করবো, যাতে ওয়ার্ডের জনগণকে বাইরে না যেতে হয়। ওয়ার্ডের ছেলে মেয়েরা, ওয়ার্ডের বসবাসকারীরা নিজের ছেলে মেয়েদেরকে ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়াশোনা করাতে পারেন, এটা আমরা দেখব। और बहुत सी जगह ऐसी है बस्ती विकास के लिए बहुत काम होना है। दीदी इस बार बस्ती के विकास के लिए बहुत पैसे भेजेगी और बस्तियों को बहुत विकास करना है। वार्ड के लोगों से, बस्ती वासियों के बीच बैठकर, अभी जब हम लोगों के घर घर जा रहे हैं तो समस्याओं को देख रहे हैं। बहुत सी जगह रास्ते नहीं है, बहुत सी जगह जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, बहुत से कुएं हैं यहाँ पर, उनकी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। हम उस सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। 18 नंबर वार्ड के वासियों को हम वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो नगर निगम क्षेत्र में बस्ती वासियों को मिलनी चाहिए। वो आपकी तरफ से एश्योरेंस रहा है? बिल्कुल 100% एश्योरेंस है और लोगों को लगता है। आपका वार्ड में महिला वोटर कितने हैं आपको मालूम है? और मर्द वोटर, मेल एंड फीमेल वोटर का डिवाइडेशन आपको मालूम है आपको वार्ड में? ये हमारे वार्ड में देखिए कुल 6,500 वोटर है जी। तो इसमें जब हम इनको बैरिकेडिंग करेंगे तो महिलाओं के 3,031 के लगभग वोटर आने चाहिए। कुछ कम और बेसी हो सकता है, वैसे ही जनरल औसत जो एक एवरेज है वैसे ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे बस्ती वासियों में जो महिलाएं हैं उनको हमें ऊपर लेकर आना है। देखिए, आपके वार्ड में गरीबी रेखा से कुछ आदमी की बसवास है जो बस्ती में बढ़ते हैं, उनके लिए जो लौकी का भंडार जो है उनके उपलब्धि कितना परसेंटेज हुआ आपके कितना पता है? देखिए, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं वार्ड में घूम रहा हूँ। काफी जगह हम जगह जगह लोगों को पूछते हैं कि आपको लक्ष्मी भंडार मिला क्या। काफी लोगों ने कहा है कि लक्ष्मी भंडार पाची। हाँ, कुछ लोगों को अभी तक नहीं भी मिला है। तो नेक्स्ट जब द्वारे सरकार का कैंप लगेगा उन बाकी लोगों को हम उस कैंप में शामिल करवा के उनको लक्ष्मी भंडार का लाभ जो है दे देंगे। लक्ष्मी भंडार मिलता है, महिलाएं उत्साह से पाती है, बोलती हैं दीदी पाठाचे, दीदी भेजा है, हम लोग दीदी के साथ है। तो ये उत्साह बढ़ता है। शिलीगुड़ी में एक ट्रेंड था, जैसे हम लोग देखते थे वेस्ट बंगाल में एक ट्रेंड पहले देखते थे, दार्जिलिंग जिला में
बराबर ये देखते रहा। जो हिल्स में वेस्ट बंगाल के एक ही पार्ट है, जो केंद्र का सरकार उनके साथ रहते हैं उन लोग। जैसे सिलीगुड़ी में भी सत्ता में राज्य में जो रहते हैं, ना विधायक मिलते हैं उनको, ना उनके साथ म्युनिसिपल नगर निगम मिलते हैं। तो इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग का डबल इंजन का गवर्नमेंट बनेंगे, मतलब नगर निगम भी इधर के डबल देखिए इंजन। मैं आपको बताता हूँ, जी लोकसभा चुनाव और लास्ट विधानसभा चुनाव जो हुआ जी वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में हुआ। जी स्वाभाविक कारणों से उस परिप्रेक्ष्य से हम परिचित हैं। और अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ की जनता उस परिप्रेक्ष्य से बहुत भली भांति परिचित हो गई है। और कहीं ना कहीं जब हम उनसे बातें करते हैं तो लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिनको यहाँ से जिताया गया वो सिलीगुड़ी के विकास में कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो दलगत राजनीति के दलदल में फंस कर ही सिर्फ राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी भूमिका जनता ने देखी है और तृणमूल कांग्रेस की भूमिका भी जनता देख रही है। ये बोर्ड जो नगर निगम का जो प्रशासनिक बोर्ड बना, इस बोर्ड ने जो काम किया है, इन 6 महीनों में जो काम करके दिखाया है, उससे जनता खुश है। जनता में हर्ष की लहर है कि इस बार तृणमूल का बोर्ड बनेगा। अब वो परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, अब परिप्रेक्ष्य आ गया है। और विधानसभा चुनाव में दीदी ने जो जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं। लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लान जनता में लागू करने वाले भारत की पहले मुख्यमंत्री दीदी बन गई है। और स्वाभाविक तौर पर सब में उत्साह है और लोग स्वागत कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, लोगों के चेहरे देखकर पता चलता है ये दीदी से खुश है और दीदी की पार्टी को यहाँ भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा, आपका वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आपके सामने में क्या है? कृष्ण के बाद क्या दूसरा कोई समस्या है आपके सामने नजर आ? नहीं, नजर वही है, बस्ती इलाका है। देखिए बस्ती इलाकों में जो सामान्य समस्याएं होती है वो सारी समस्याएं हैं। जैसे कुछ जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, जल निकासी वगैरह, सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था अभी भी कम है, काफी कम है। हम इन सब को चिन्हित कर रहे हैं। इन बस्तियों में व्यापक विकास होगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, सैनिटेशन की जो व्यवस्था है वो बस्तियों में प्रॉपर होगी। मैं 18 नंबर वार्ड के निवासियों को आपके माध्यम से ये वचन देता हूं कि उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और आपको मालूम है मिलन जी, मैं बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से युक्त हूँ और बहुत सारे सोशल सर्विस के काम होते ही हैं मेरे थ्रू, मतलब मैं लगा रहता हूँ साल भर। अब वो सारे काम का कुछ पोर्शन हम 18 नंबर वार्ड में करेंगे तो सरकारी स्तर पर मदद मिलेगी और गैर सरकारी स्तर पर भी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वार्ड नंबर 18 के वासियों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। स्कूल, मैंने 2-3 मंदिर देखे हैं जो मंदिर पुराने हो चुके हैं, कुछ कारण से नहीं हो रहे हैं, उनको एकदम मॉडल मंदिर के रूप में हम लोग बनाएंगे। और बहुत जल्दी लोगों ने जब मुझसे कहा कि हमारा मंदिर है, मैंने वो जगह देखा, मैंने कहा कि चुनाव के बाद हम बनाएंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो हम सेवा का काम करते रहते हैं और धार्मिक कार्यकर्ता भी हूं मैं, तो उस नाते ये काम करेंगे। उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग से है। स्कूल की जो समस्या वो मैंने आपको बताई। कुछ हम हेल्थ चेकअप कैंप के परमानेंट सेंटर लगाएंगे। सरकारी स्तर से जो है वो तो है ही, गैर सरकारी संस्थाओं को मिलाकर यहाँ एक परमानेंट सेटअप करेंगे। लोगों को एकदम चैरिटेबल रेट में लोगों की जो लेबोरेटरी जांच वगैरह की होती है वो करके देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बस्ती वासियों को, हमारे नीचे तबके के लोगों को कैसे हम सहूलियत दे सके, उनके बच्चों की पढ़ाई की कैसे व्यवस्था हो सके, ये सारा काम करें। आपका वार्ड के समस्या के बारे में आपको एक अनुभव है, आपको मालूम भी है, लेकिन बात ये रहा है अभी आपका वार्ड लास्ट 7 ईयर्स में सिलीगुड़ी में 2nd पोजीशन मिला था डेंगू का पेशेंट के हिसाब से। सिलीगुड़ी में ज्यादा डेंगू था, आपका वार्ड में बहुत अफेक्टेड है। डेंगू का विषय लेकर आपने कितना चिंतित रहा है? नहीं, डेंगू के वास्तव में बहुत चिंता की बात है। और डेंगू के लिए तत्कालीन जो हमारे पार्षद थे निखिल साहनी, उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया था। उन्होंने जो जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो छिड़काव किया था। प्रोसेस जारी रहेगा। हम और ज़्यादा उसमें ऐड करेंगे और ज़्यादा प्रयास प्रारंभ से ही करेंगे ताकि वो डेंगू की बीमारी न फैले। और एक बात बताऊं, मैंने और हमारी तृणमूल कांग्रेस की टीम ने हमने ये तय किया है कि 18 नंबर वार्ड के एक व्यक्ति को हम मार्च महीने तक वैक्सीनेशन करवा देंगे। अभी तक तो हो चुका है, अभी तक काफी हो चुका है, लेकिन काफी बाकी भी है। हम 1 अप्रैल 2022 को वार्ड नंबर 18 में
कोई वैक्सीनेशन लिए बिना नहीं रहेगा, सबको वैक्सीनेशन करवा देंगे, ये हमारा प्रयास है। हमने वार्डवासियों से अपील की कि जिनकी बाकी है उनके नाम हमें लिखवाए ताकि हम करवाएं। गतकाल हमने यहाँ की कुछ लोगों को, करीब 500 लोगों को वैक्सीनेटेड करवाया था। ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। चंद्र जी, एक बात ये रहा जो आपने निखिल जी का बात करा, निखिल जी भी आपका पार्टी से शामिल है, उन्हें भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से अपना नामांकन दर्ता किया था जी। तो उन्हें अपना नामांकन दर्ता भी फिरता लिया, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं अपना पार्टी में इसका कोई बैड इफेक्ट सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई बैड इफेक्ट नहीं है। हमारे पूरे टीम, तृणमूल कांग्रेस 18 नंबर वार्ड ही नहीं, पूरे सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीम टीएमसी, टीम दीदी, टीम विकास, टीम प्रगति, टीम बांग्ला में एक्टिव है। और 18 नंबर वार्ड में एक जो इंसिडेंट हो गया, एक तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में जो हुआ सो हुआ। अब हमारे सभी साथी लग गए हैं यहाँ से। इवन निखिल जी आपने लिए प्रचार में जा? बिल्कुल बिल्कुल, निखिल साहनी जी भी हमारे लिए प्रचार में आ गए हैं, हमारे लिए बोलना शुरू कर दिया। और डे 1 से, जिस दिन से उन्होंने नॉमिनेशन दिया उसी दिन से वो काम में लग गए। हम लोग देखिए दीदी के सैनिक हैं, पार्टी के डिसीजन को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं और उसके लिए मर बैठने को तैयार है। मतलब आपने इस जगह में जो आपका दूसरा साइड में आशंका जताया जा रहा था जो इस वार्ड में कोई सैबोटाइज हो सकता है, लेकिन आपने उसमें मुक्त है, आपको लगता है? एकदम। हम लोग 18 नंबर वार्ड की टीम में, हमारी टीम में कोई सैबोटाइजेशन जैसी कोई बात है ही नहीं। सभी लोग दीदी को जिताने के लिए, टीएमसी को जिताने के लिए, वार्ड में वापस टीएमसी का झंडा फहराने के लिए कृत संकल्प। आपका वार्ड में कितना बूथ है? हमारे वार्ड में 7 बूथ हैं और मुझे लगता है कुछ ऑक्सिलरी बूथ भी 2 या 3 इस बार ऑक्सिलरी बूथ भी रखा गया है। ऑक्सिलरी बूथ भी रखा गया है। तो वो जैसे चुनाव आयोग का काम है, हम उनमें साथ हैं, जो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। जैसे स्टार लीडर व स्टार कैंपेनिंग जो बोलते हैं, आपका वार्ड में आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और गौतम जी को भी प्रचार में लेकर आना है? हाँ बिल्कुल, अगले 2-3 दिनों में सारे स्टार कैंपेनर 18 नंबर वार्ड में भी आएंगे। हमारे सिलीगुड़ी के स्टार तो अभी गौतम दा है, गौतम दा जा रहे हैं घर घर। हमारी पापिया दी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, आलोक चक्रवर्ती जी हैं, रंजन सरकार जी तो खुद कैंडिडेट है, वो वहाँ टाइम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रचार में जा रहे हैं। सारी टीम टीएमसी और कलकत्ता से लोग भी आएंगे। 18 नंबर वार्ड में धूम मची रहेगी प्रचार। आपको देखिए जीत के बारे में कितना आप कॉन्फिडेंट है? जीत तय है, जीतता है, जीत तय है। जनता के बीच जब मैं गया हूँ, जनता के मनोभावों को देखकर, देखिए मैं 1988-89 से छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति में, तब से लोगों के बीच काम करता है। चेहरे देखकर पता चलता है कि इस बार दीदी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को जो प्राप्ति का आनंद दिया है, उसका रिजल्ट वोट बक्सा में मिलेगा और बटन दबेगा टीएमसी के निशान पर और भारी मतों से हम जीतेंगे। आपका मेन लड़ाई जो हो रहा है, चुनावी प्रतिस्पर्धा हो रहा है, सीपीएम का कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट, किसका आप मानते हैं मेन अपोनेंट? देखिए मुझे प्रतिस्पर्धी कहीं दिखे नहीं है, কারোর সাথে কোনো কম্পিটিশন আছে বলে আমার মনে হয় না, একদম মনে হয় না। নির্বাচন তো এটা জেতা হারার খেলা, নির্বাচন তো একটা খেলাই আছে, জেতা হারার খেলা। সেই খেলাতে আপনার মেন প্রতিদ্বন্দ্বী কে? আমরা 4 জন আছি মেন প্রতিদ্বন্দ্বী। এখন ওদের মধ্যে সেকেন্ড বা থার্ড বা ফোর্থ কে হবে কেউ বলতে পারছে না, ওই ধরনের থাকবে, কিন্তু আছে কাছে আশেপাশে কেউ থাকবে না। দিদির দলকে 8 নম্বর ওয়ার্ডের জনগণ মেনে নিয়েছে। দিদির দলই বোর্ডে আসবে, দিদির দলই ওয়ার্ডে আসবে। দিদি আছে, ওয়ার্ড নম্বর 18 জনগণ দিদির পাশে আগেও ছিল, আগামীও থাকবে। এই ওয়ার্ডটাতে 6,500 ভোট আছে, কত ভোট কাউন্ট হয়েছে আপনি জানা আছে? গত নির্বাচন কোন বিধানসভা নির্বাচনে? হ্যাঁ, বিধানসভা নির্বাচনে দেখুন যে পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছিল, আমরা কিছু দেখছিলাম, কিছুটা দেখেছিল, কিছুটা আমরা দেখছিলাম, ঠিক আছে। সেটা কতটা রিকভারি করতে পেরেছে? সেটা রিকভার হয়ে গেছে। দিদি আসার পরে ওগুলো সব চেঞ্জ, যত দেখেছিলাম তার দ্বিগুণ লিডে আবার চলে এসেছে অলরেডি। আর আপনি দেখবেন এবার আমরা রিমার্কেবল ভিক্টরি 8 নম্বর ওয়ার্ডে পেয়ে যাব। আর ওয়ার্ডের জনগণ দিদিকে, টিএমসি বোর্ডকে 8 নম্বর ওয়ার্ডে যে ফুল সমর্থন আছে এটা ইভিএম মেশিনে দিয়ে দেবে।
ईवीएम तो 22 को बाद ही नतीजा पता चलेगा, 25 को नतीजा का परिणाम आएंगे, उस वक्त पता चलेगा संजय शर्मा जी का इतना कॉन्फिडेंस कब किस लेवल पे है, और उस वक्त ही पता चलेगा जनता जनार्दन ने उनको वोट को वेस्टेज में कहाँ ही प्रयोग करेंगे और उनको प्यार उनके लिए कितना रहेगा। लेकिन अभी इस वक्त मैंने शर्मा जी को बोलना चाहूंगा, उन्हें अपना वोटर का बस, उनके ऐसे एक वार्ड है जहां पे कहीं 25% आदमी के आसपास हिंदी भाषी भी है और बांग्ला भाषी भी है। एक मिनी इंडिया वार्ड बोल सकता है इसको, क्या यहाँ पे हर धर्म, हर मजहब, हर भाषा की, हर समाज की, हर कल्चर की आदमी की बसवास है इस वार्ड को। और इस वार्ड को एक ऐसे नतीजा रखा गया संजय जी को लेकर, जो संजय जी ने अपने कॉन्फिडेंस और आगे का दिन में इस वार्ड के जो विकास कार्य উনি কতটা করতে পারেন আর ওয়ার্ডবাসীদের উপর কতটা আস্থা রাখবেন সেটার পরিণাম কিন্তু 22 তারিখে আসবে, বা সেটার ফল 22 তারিখেই জনতা জনার্দন ইভিএম এ জমা করবে, 25 তারিখে সেটা প্রকাশ পাবে। তার আগে আমরা সঞ্জয়জিকে বলবো, সঞ্জয়জি নিজের তরফ থেকে বাংলা এবং হিন্দিতে তার ওয়ার্ডবাসীকে কি আপিল করতে চাইবেন, একবার হাত জোর করে উনি তার ওয়ার্ডবাসীকে আপিল করুন, উনি কি চাচ্ছেন হিন্দি এবং বাংলা উভয়তে একবার আপিল করবেন। আমার সমস্ত 8 নম্বর ওয়ার্ডবাসীকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আমার বিশ্বাস আছে আপনি গতবার তৃণমূলকে এখানে বিপুল ভোটে জয় করেছিলেন, এবারও তারই পুনরাবৃত্তি হবে। বাংলার জনগণ যেমন দিদিকে চায়, শিলিগুড়ির জনগণ সেরকম শিলিগুড়ি শহরে টিএমসির বোর্ডটাকে চায়। টিএমসির বোর্ড আসবে, এটা নিশ্চিত আছে। ওয়ার্ডে টিএমসি জিতবে, এটাও ফিক্স আছে। জনগণ টিএমসির সাথে আছে, यह भी तय है। और বাংলা ভাষী, হিন্দি ভাষী, আমরা কিন্তু বাংলা ভাষী, সবাই একসাথে সবসময় ছিলাম, আছি, উন্নয়নের সাথে, प्रगतिर साथे, शांति साथे। मैं अपने वार्डवासियों को प्रणाम करता हूँ। आपने अभी तक डोर टू डोर के अभियान में मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनसे अभिभूत हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्डवासियों की सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि कभी नहीं की जाएगी। जनता को, वार्ड की वासियों को एकदम समुचित सेवाएं, उचित सेवाएं, निगम से जो भी सेवाएं होगी वो हाथों हाथ उपलब्ध कराई जाएगी। टीम टीएमसी हर समय जनता की सेवा में 24/7 उपलब्ध रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। দর্শকবৃন্দ, আচ্ছা আপনারা দেখলেন সঞ্জয় শর্মার এই ছোট অন্তর্বার্তা বা ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার। আমরা উনি প্রচারের কিছু ঝলক আপনাদের সামনে রাখবো, কিছু মুহূর্ত রাখবো আগামী 2-3 দিন। দেখতে থাকুন ডিএসটিভি ইন্ডিয়া নিউজ এবং ডিএসটিভি দার্জিলিং। আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি থেকে মিলন ছেত্রীর সঙ্গে ক্যামেরায় রয়েছেন জয় চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি।